استاذ گرامی فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبدالحنان زاہد حفظہ اللہ تعالی ان کی شخصیت پر بات چیت کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مولانا ارشد قصوری حفظہ اللہ تعالی استاذ جامعہ سلفیہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یجل کبیرانا ویرحم صغیرانا ویعرف عالمنا حقہ۔ بہت ہی لائق تکریم اساتذہ کرام، محترم سامعین اعظام، استاذی مرشدی فضیلت الشیخ مفتی عبدالحنان حفظہ اللہ ورعاہ، 15 دسمبر 1960 کو کنگن پور کے نواحی گاؤں فتح محمد کلام میں پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے 4 مہینے ان کی ولادت سے قبل ان کے والد گرامی دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو والد گرامی نہیں تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں فتح محمد کلام میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کھڑیاں خاص میں مولانا صادق صاحب کے مدرسہ میں چلے گئے، ابتدائی کتابیں وہاں پڑھیں اور وہاں سے آپ دارالحدیث راجوال مولانا محمد یوسف رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ ان کے سائے میں رہے، اور وہاں تعلیم کچھ مکمل کرنے کے بعد وہاں سے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں لکھوی خاندان کے چشم و چراغ کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ان کے استاد گرامی مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ان کے حکم پہ، یہ غالباً 1979 کی بات ہے، انہوں نے وفاق المدارس سلفیہ کا امتحان پاس کیا اور 1980 میں وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد سانگلہ ہل میں مولانا عبدالشکور سید عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ ان کے مدرسے میں کچھ کتابیں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد اپنے استاد گرامی مشفق، جن کے ساتھ انہوں نے لمبا عرصہ گزارا اور اکثر ان کے واقعات سنایا کرتے تھے، چونکہ مجھے بھی استاد گرامی کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 23-24 سال ہو گئے، سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ ان کے گھر میں بھی رہے، تو ان کو ہر لحاظ سے ایک منفرد ہستی پایا ہے۔ 1980 کے بعد وہاں عارف والا میں چلے گئے، مدرسہ 149 چک میں۔ اس وقت اس مدرسہ کے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، اور ان کے زیر سایہ تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 1982 میں پھر فضیلت الشیخ فضیلت الاستاد استاد العلماء ثناء اللہ مدنی صاحب حافظ رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ ان کے حکم پہ پھر جامعہ سلفیہ میں تدریس کا آغاز کیا، اور یہاں فیصل آباد میں ہی خطبہ جمعہ کا بھی آغاز فرمایا۔ 1983 میں ان کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ 1983 سے لے کے 1988 تک مدینہ منورہ میں انہوں نے تعلیم کو مکمل کیا۔ پھر 1 سال کے لیے وہاں سے مکہ مکرمہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت ایک انہوں نے کورس کیا جو ڈگری ایم اے کے مساوی تھی، وہاں سے تشریف لائے تو پھر جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں انہوں نے یہاں تدریس کا آغاز کیا۔ میرے مشفق، میرے مربی، استاد المکرم مدیر التعلیم چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، انہوں نے انتخاب کر کے
सरफराज कॉलोनी मस्जिद अशरीफ में खुतबे के लिए भेजा तो वहाँ खुतबा इरशाद फरमाने गए। वहाँ की इंतज़ामिया ने कहा कि हर खुतबे का मौजू हम दिया करेंगे। उस्तादुल गुरामी इल्मी रसूख और इस कदर पुख्तगी और कुरान के साथ इस कदर ताल्लुक़, हदीस के साथ इस कदर मोहब्बत, सुन्नत के साथ इस कदर तमस्सुक, वो फरमाने लगे 3 महीने मुझे दे दो, फिर मौजू आप दे दिया करें। ये उस्ताद गिरामी ने मुझे वाक़या खुद सुनाया। 3 महीने गुजरे, वो 3 महीने, ये गालबन 1991 की बात है, 91-92 की बात है। वो 3 महीने और आज 2023, 1-1.5 साल पहले उन्होंने खुतबा छोड़ा और फिर उस्तादुल मुकर्रम मदीरुल तालीम चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब हाफिज़हुल्लाह ने उसी मस्जिद में उनके नायब खतीब मौलाना फ़रूक रहमान यज़दानी साहब को इंतखाब उनका करके वहाँ भेजा। तो उस दिन से लेके आज तक, और जब 1996 की बात है, मैं जामिया सल्फिया में दाखिल हुआ तो उस्ताद जी की शफ़क़त मुझे मुयस्सर आई और उस दिन से लेके मैं देख रहा हूँ इस मस्जिद में, जिस मस्जिद में आज ये रौनक मेरे बरादर अकबर मौलाना अब्दुल मुआज़ साहब और उमर अयूब साहब ने सजाई है, उनके रफ़ाका ने, इसी मस्जिद में उस्तादुल मुकर्रम में ये मेरे अहबाब, उनके शागिर्द ये कसीर तादाद में बैठे हुए हैं। इसी मस्जिद में लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कुरान पाक को तफसीर के साथ उन्होंने कई बार मुकम्मल किया और ये बीमारी के चंद यानी 1 साल 1.5 साल पहले तक ये दरस भी यहाँ चलता रहा। तो उस्तादुल मुकर्रम की ये तो उनकी तालीमी, और इसके साथ साथ जब जामिया सल्फिया में आए तो दारुल फतह की ज़िम्मेदारी भी उनके कंधों पे डाली गई और उन्होंने बड़ी ही जान फशानी के साथ इस फरीज़े को सर अंजाम दिया। आप साइल के साथ अल्लाह ताला ने वो कुरान और सुन्नत के साथ तमस्सुक की वजह से, इल्मी रसूख की वजह से इस कदर अल्लाह ने बसीरत से माला माल कर रखा है उन्हें। मैं समझता हूँ वो अपनी मिसाल आप है। जब कोई साइल आता तो बसा औकात, चूँकि काफ़ी अरसा उस्ताद जी के पास बैठ के तालिब इल्मी दौर में भी खाना खाते रहे, मैं खिदमत करता रहा। उस्ताद जी वहाँ साइल से नमाज सुनने का मुझे फरमा देते। आते हुए जब साइल आता, तलाक का मसला हो या और खुसूसन तलाक के मसाइल आते हैं, तो उनसे पहले नमाज सुनते। अगर उन्हें नमाज आती तो फिर उन्हें फतवा लिख देते, वरना उन्हें कहते 1 हफ्ता, पूछते अब किस मोहल्ले में है तो बताते, फरमाए फ़लाँ मोहल्ले में मेरे शागिर्द मौजूद हैं, मस्जिद मौजूद है, तो आप 1 हफ्ता नमाज याद करें, फिर आके नमाज सुनाएं। नमाज सुनाने के बाद आपको फिर मैं फतवा दूंगा। और ऐसे ही होता। उस्तादुल मुकर्रम को अल्लाह ने जो बसीरत दी थी वो अपनी मिसाल आप है। वो साइल को देखकर आम आदमी जब बात सुनता तो तरस आता, लेकिन उस्ताद गिरामी आंखों में आंखें डाल के बात करते। बसा औकात हक बातिल में तमीज़ के लिए, हलाल और हराम की तमीज़ के लिए उस्तादुल मुकर्रम ज़रा सख्ती भी करते, लेकिन बाद में जाने वाले के साथ ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत होती जो हमेशा उनको याद रखते। उनके बारे में बातें तो बहुत थीं। वो इंतहाई मेहमान नवाज भी, और वो इंतहाई मिलनसार भी, और इंतहाई खुश अखलाक भी। आखिरी बात करके आप बात ख़त्म करता हूँ। 1996 की बात है, घर से मैं आया, जामिया का पुराना गेट था, वहाँ एक टेलीफोन हुआ करता था, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास। ये मैंने 2 हस्तियों को देखा है अपनी ज़िंदगी में। ये 20-22 साल पीरियड में उस्तादुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शेख मदीरुल तालीम चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब को और उस्तादुल गिरामी मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब को, कि जहाँ कोई तालिब इल्म मिलता है उसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों यहाँ बैठे हो। और ये तौफीक मुझे भी अल्लाह ने इन्हीं के वजह से दे रखी है। मैं घर से आया, दिल लगता नहीं था। भाई कराची में मुलाजमत करते थे, इतवार की इतवार मुझे फ़ोन आता था, मोबाइल थे नहीं, गेट पे ऐलान होता, फ़ोन आता। इत्तिफाक ये हुआ कि उस्ताद जी मुफ्ती साहब जिस रास्ते से गुज़रते तो फिर तलबा जानते हैं, बेशुमार असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं जो उनके शागिर्द हैं। वहाँ सन्नाटा होता था, रोब था। तो वो एक इतवार को गुजरे तो मैं वहाँ फ़ोन सुनने के लिए बैठा हुआ था। उस वक़्त इस मस्जिद में दर्स देते थे, इशा के वक़्त दर्स दे के वापस गया तो मैं वहाँ बैठा। दूसरी इतवार हुई तो फिर मैं बैठा। जब देख के चले गए, 7 कमरा था,
तीसरी इतवार को मुझे बुला के कहने लगे, ओ भाई, उनका तकिया कलाम है, ओ भाई आप गेट पे चौकीदारा करने आए हो, मैं जब देखता हूं यहां, आज के बाद मैं आपको ना देखूं, और अल्लाह शाहिद है उसके बाद उस्ताद जी ने कभी मुझे वहां नहीं देखा, मैं उनके लिए दुआगो हूं। और दूसरा, उन्होंने एक बार मुझे तालिब इल्मी दौर में नंगे सर देखा, कहने लगे भाई आप नंगे सर अच्छे नहीं लगते। उसके बाद उस्तादुल गुरामी ने मुझे नंगे सर नहीं देखा, मैं दुआगो हूँ उस्तादुल मुकर्रम की ज़िंदगी में अल्लाह दुल जलाल वाली कराम बरकत फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत वाली, ईमान की सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। क्योंकि आपके वालिद गिरामी वो भी आलम दीन थे, आपके दादा जान भी वो भी आलम दीन थे, और पूरे इलाके में उनका एक नाम है, उस्तादुल गुरामी का एक नाम है। वहाँ एक इदारा उन्होंने कायम कर रखा है जो उनके इखलास का मुँह बोलता सबूत है, बड़ा कामयाब इदारा है। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, मेरे बरादर अकबर फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल समद मुआज़ साहब, उमर अयूब साहब, जिन्होंने मुझे उस्तादुल मुकर्रम के बारे में इजहार ख्याल करने की दावत दी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीक।